Hello students, hello all my SGTians, and welcome you all to yet another video of our channel Math Master. Students, today the topic that we are going to cover is very interesting, बहुत मजा आने वाला है. Chapter number 15 of Science, our environment. So this chapter of standard 10th is very interesting. Students, आपने देखा होगा कि हम लोग कई बार एनवायरनमेंट के बारे में बातें करते हैं. वी रीड अ लॉट अबाउट एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज इन द न्यूज़पेपर एंड वी ऑल्सो वॉच देम ऑन टेलीविजन. हम ये भी सुनते हैं कि हमारे पेरेंट्स अक्सर हमें कहते रहते हैं कि अभी का एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था. एंड पीपल ऑल अराउंड दे टॉक अ लॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. So students, today in this chapter we are going to study about the components of the environment and how they interact with each other, and we will also discuss the impact means asar, the impact of human activities on the environment. So I hope I am eager to explain and you too are eager to learn along with me. So here I go. So the first thing that I wish to explain you is the biotic and the abiotic components of the environment. Students, all living organisms like plants, animals, you and me means human beings, microorganisms. So we all are the biotic components of the environment. So आप समझ गए होंगे कि biotic का मतलब होता है living. और हमारा जो फिजिकल सराउंडिंग है इसमें बहुत सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे टेम्परेचर, यू कैन टेक सॉइल, यू कैन टेक ऑल्टीट्यूड. सो दिस आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स, इवन रेनफॉल. सो ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. सो अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग. सो आई होप you are very clear with the words biotic and abiotic. So students, all living organism as well as the physical surroundings, हमारे आसपास का जो physical surroundings है, and all the living organism interact with each other and they maintain a balance in the nature. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी living organisms हैं, मतलब जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब फिजिकल सराउंडिंग के साथ एक बैलेंस मेंटेन करते हैं एनवायरनमेंट में. So all the living organisms and the non-living constituents of the environment together they form an ecosystem. Students, ecosystem दो चीजों से consist होता है. It consists of the biotic components, means all the living organisms, and the abiotic components means हमारे आसपास के physical factors like the temperature, like the rainfall, like the wind, soil, altitude means height, minerals. So this all cover the abiotic components. तो short में, because बहुत कम topics हैं इस chapter में समझाने के लिए. So what is ecosystem? So all the living organisms in a particular area together with the non-living constituents of the environment together they form an ecosystem. अब स्टूडेंट्स देखिए, सपोज आप किसी गार्डन में जाते हैं, सपोज आप किसी पार्क में जाते हैं, तो उस गार्डन, उस पार्क में कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट तरह के ट्रीज होते हैं, कुछ डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं. ठीक है. सो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास के फिजिकल सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसको हम कहते हैं गार्डन इकोसिस्टम या द पार्क इकोसिस्टम. सो गार्डन एक इकोसिस्टम. इफ यू गो टू फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मच मोर देन इन अ गार्डन. सो ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद द फिजिकल सराउंडिंग. सो फॉरेस्ट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम. Pond is an ecosystem, lake is an ecosystem, ocean is a very big ecosystem. So I hope you are getting the word ecosystem very clear. एक और important point students, कि बहुत सारे ecosystems man-made होते हैं. Man-made. Now मैं एक बात करूं गार्डन की, तो गार्डन में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे?
वहां का किस टाइप के अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. सो गार्डन एंड इवन किसान का जो खेत होता है विच वी कॉल क्रॉप फील्ड. सो दिस टू आर मैन मेड और आई कैन से human made ecosystem. We can even say artificial ecosystem. Confirm? So two types of ecosystems: natural like ocean, rivers, lake, these are natural ecosystem, and man made. Even aquarium is a man made ecosystem. Aquarium, crop field, garden, zoo, this all are man made ecosystem. Perfect. So ये जो मैंने आपको टॉपिक अभी तक डिस्कस किया, let us take out the first page of our environment and let us underline this. So students, ecosystem, what are its components? Let's underline. All the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. Thus an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals. तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस है. अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया था कि गार्डन एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इज अ इकोसिस्टम, पॉन्ड इज अ इकोसिस्टम, लेक इज अ इकोसिस्टम. सो ऑल दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, while garden, crop field, you can even say aquarium, zoo, all these are man-made or we can say artificial ecosystem. Is that clear to all? Fine. अब हम आगे बढ़ते हैं सर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मींस बायोटिक कंपोनेंट्स. सो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स. नंबर 1, प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स समझते हो क्या है? प्रोड्यूसर्स मींस दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं they are called producers. They make their own organic compounds. Like in chapter 6 you have studied that plants produce glucose. So it is an organic compound produced by plants. So they are producers. Consumers मतलब आप और मैं means we do not prepare our own food and we depend on plants. We depend on plants, so we are consumers. और third and the most important are decomposers. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा. सो बायोटिक कम्युनिटी 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. राइट. सो लेट अस बिगिन विथ प्रोड्यूसर्स. राइट. सो दोज ऑर्गेनिजम्स दे मेक देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग रेडियंट एनर्जी, मीन्स यूजिंग सोलर एनर्जी. नाउ सी स्टूडेंट्स, प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, दे रिक्वायर वाटर, दे रिक्वायर मिनरल्स विच दे गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट. तो ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं लाइक शुगर एंड स्टार्च एंड ग्लूकोज. ओके, एंड व्हाई दे आर एबल टू डू सो, यू नो, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम. सो ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे ऑल आर सेड टू बी प्रोड्यूसर्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. सो हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर अवर फूड, एंड सो वी आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को डियर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है: हर्बीवोर्स, those who eat only plants or plant products; carnivores, those who eat only flesh or meat, you can say; omnivores, they eat both, that is plants and flesh. Parasites. अब स्टूडेंट्स ये देखिए, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स मीन्स दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म who live inside the body of other organisms or on the body of other organisms and cause disease. से फॉर एग्जाम्पल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ वॉर्म्स हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड या वाटर के थ्रू कुछ वॉर्म्स एंटर हो गए, तो उनको पैरासाइट्स कहेंगे. वो पैरासाइट्स आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे और अल्टीमेटली आपकी बॉडी को हार्म करेंगे. कंफर्म एवरीबॉडी? सो कंज्यूमर्स आर कैटेगराइज इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स.
ठीक है, चल नाउ वी गो फर्दर. अब स्टूडेंट्स इट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा. स्टूडेंट्स अगर आपके घर में एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम समझते हो जिसमें हम फिशेस रखते हैं घर के अंदर. सपोज आपके घर में एक एक्वेरियम है. अब से फॉर एग्जाम्पल, अब इस एक्वेरियम में मान लीजिए कोई एक फिश डाइस, कोई एक फिश की डेथ हो जाती है, राइट, और आप उसको क्लीन नहीं करते, मीन्स आप उस फिश को एक्वेरियम में से बाहर नहीं निकालते. सो माई क्वेश्चन इज, will the other fishes and plants in your aquarium, will they die? Think and tell me. अगर आपके पास एक एक्वेरियम है and in that aquarium if one fish dies और आपने उस फिश को बाहर नहीं निकाला, you are not clean the aquarium, so will the other fishes, will the other plants die? The answer is certainly yes. Certainly yes. Okay. अब स्टूडेंट्स इमेजिन करो एक रिवर है, एक पॉन्ड है, एक लेक है, उसमें तो कितनी सारी फिशेस होती है. सो उसमें से अगर कोई एक फिश की डेथ हो जाए, विल ऑल द अदर फिशेस डाई? आर ऑल द अदर फिशेस गोइंग टू डाई? थिंक ऑफ इट. पॉन्ड में, लेक में, ओशन में तो मिलियंस ऑफ फिशेस होती है, इनफाइनाइट. सो इफ एनी वन फिश डाइज, ऑल द अदर फिशेस विल ऑल्सो डाई? द आंसर इज नो. So why this? Maybe you are giving examples, sir, aquarium बहुत छोटा होता है, ocean बहुत बड़ा होता है. Nothing like that. That's not the correct answer. The correct answer is कि students बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगस. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड बॉडीज या डेड रिमेन्स के अंदर जाते हैं और उनके अंदर जाके दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स organic substance into simple inorganic substance. I repeat, suppose इंसान के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनकी डेथ के बाद उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ये काम है डिकम्पोजर्स का. सो व्हाट डू डिकम्पोजर्स डू? दे कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. और ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दे गो बैक इन द एटमॉस्फेयर और दे गो बैक इन द सॉइल एंड अगेन दे आर यूज्ड अप बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये नेचुरल डिकम्पोजर्स ओशन में, लेक में, पॉन्ड में होते हैं, लेकिन हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब एक्वेरियम में नहीं होते. सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, all the other fishes will die in the aquarium, but because those decomposers are present in lakes, ocean, they are not going to die. The fishes are not going to die in the lake, in the oceans, because वो fishes उस डेड बॉडी में जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दें. और स्टूडेंट्स ये डिकम्पोजर्स का ही रीजन है कि हम किसी भी डेड बॉडीज में से अ वेरी बैड स्मेल कम्स आउट. तो वो बैड स्मेल एक प्रूफ है कि अब डिकम्पोजर्स ने अपना काम अंदर शुरू कर दिया है. सो स्टूडेंट्स, आई होप द टॉपिक ऑफ डिकम्पोजिशन, द टॉपिक ऑफ डिकम्पोजर्स इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन. Correct? Fine. So I request you to please focus on the textbook, everybody. Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plant have died. Have you ever thought what happens when an organism dies? The microorganism comprising bacteria and fungus break down the dead remains and waste product of organisms. These microorganisms are the decomposers. As they break down the complex organic substances into simple inorganic substances that go into the soil and they are used up once more by the plants. So students, यहाँ बात हो रही है decomposers की. What do decomposers do? Please underline. They break down the complex organic substances into simple inorganic substances. ये उनका function है. किनका? Decomposers का. Fine students. Now students, I would like that you should turn the page and come to page number 258, and here you will find some living organisms. See, trees or plants eaten by deer,
डियर ईटन बाय टाइगर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर न्यूट्रिशन और फूड। दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर न्यूट्रिशन और फूड। सो ये एक फूड चेन है। सो इन दिस फूड चेन you will find that there are a series of organisms which are feeding one another, जो एक दूसरे को खाते हैं। So this series of biotic components they comprise a food chain. Students यहाँ पे भी एक food chain देखिए, this is a food chain, even this is a food chain। तो हर organism एक दूसरे organism को eat कर रहा है। आप चाहे तो ये food chain change भी कर सकते हैं। Say for example plants are eaten by goat. Instead of deer, you can take a goat. The goat is eaten by lion, it's eaten by leopard. So, a food chain. Every organism depends on other organisms for food. अब स्टूडेंट्स ये जो हर एक स्टेप है ना फूड चेन का, जैसे इस यहाँ पे फूड चेन के 3 स्टेप्स हैं, यहाँ फूड चेन के 5 स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेप्स हैं इनको कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल। आई रिपीट, ट्रॉपिक लेवल। Each step is called tropic level। जैसे यहाँ पे देखो 4 ट्रॉपिक लेवल हैं। Here there are 5 ट्रॉपिक लेवल, here there are 3 ट्रॉपिक लेवल्स। तो स्टूडेंट्स हर ट्रॉपिक लेवल के बिगिनिंग में you will always find plants, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स, या हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स। So the autotrophs or the producers are the first tropic level। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? With the help of solar energy, they prepare their own food, means they convert the sunlight or the solar energy into chemical energy. I repeat, what do autotrophs do? What do producers do? They convert the solar energy into chemical energy. And this chemical energy from autotrophs, it goes to heterotrophs. Heterotrophs समझते हो? Heterotrophs मतलब those organisms which cannot prepare their own food, they depend on other organisms, मतलब they depend on plants। जैसे हम लोग heterotroph है। स्टूडेंट्स हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे यू विल हैव प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स। आई रिपीट, फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स, प्राइमरी कंज्यूमर, secondary consumer, tertiary consumer, and so on. Right? Fine students, I'm going further now. Very surprisingly मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा रिगार्डिंग द फूड चेन। जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, दे कैप्चर ओनली 1% ऑफ द एनर्जी, मीन्स विच एनर्जी? सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। जितनी भी एनर्जी लीव्स पे गिरती है किसी भी प्लांट के, द प्लांट्स आर एबल टू कैप्चर ओनली 1% ऑफ दैट एनर्जी, और सिर्फ वो 1% एनर्जी दे आर कन्वर्टिंग इनटू फूड, मीन्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज, ओनली 1%। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आई वॉन्ट यू टू फोकस मोर एंड मोर। इसको हम कहते हैं 10% लॉ ऑफ फूड, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द 10% लॉ? अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स देखो, ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब मान लो ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय गोट या काउ, बफेलो। ठीक है, अब देखिए सर, इमेजिन करो कि प्लांट्स ने अपने अंदर फूड प्रोड्यूस किया, तो ऑब्वियसली प्लांट अपना फूड खुद भी यूज करेगा। ठीक है, बिकॉज प्लांट को उस फूड में से एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी उसके डाइजेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लांट जितना फूड बनाता है उसमें से काफी फूड वो यूज कर लेता है टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, ऑन एन एवरेज सिर्फ 10% ऑफ द फूड ईटन is turned into its own body and made available for the next level of consumers. What does it mean? It means that, say for example, there is a plant and there is 1000 joule of energy present in the plant. Now when a goat will eat the plant, goat के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगा 1000 जूल का। So 1000 जूल का 10% समझते हो कितना?
सिर्फ 100, मीन्स गोट के अंदर जाएगा 100 जूल। तो जब इस गोट को एक टाइगर खा जाएगा तो टाइगर के पास जाएगा सिर्फ 10 जूल्स। Am I clear, students? So this is the 10% law. On an average, 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers. ठीक है? So only 10% of the energy goes to the next level of consumers. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एनर्जी इतनी कम होती जा रही है कि जब आप 4th या 5th स्टेप पे आएंगे द एनर्जी विल बी ऑलमोस्ट 0। ठीक है, मान लो टाइगर को जो खाएगा ना उसके पास तो सिर्फ 0.1 जूल, उसके पास सिर्फ 1 जूल ही बचेगा, ओनली 1 जूल, एंड 1 जूल इज वेरी नेग्लिजिबल। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। प्लांट, एनी टाइप ऑफ प्लांट ईटन बाय, यहां पे हम प्लांट की जगह ग्रास ले लेते हैं। सो ग्रास सपोज ईटन बाय ग्रास हॉपर, okay, eaten by frog, eaten by cat, eaten by dog। ठीक है, अब हम वही एग्जांपल लेते हैं 1000 जूल्स। सो हियर विल बी 100, हियर विल बी 10, 0 कम करते जाओ, हियर विल बी 1 जूल एंड हियर विल बी 0.1 जूल। सो बिकॉज द एनर्जी एट 4th and 5th tropic level is almost negligible, so our tropic level consists of only 3 or 4 steps. Since so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little energy remains after 4th tropic level. और ये पॉइंट तो बहुत ऑब्वियस है स्टूडेंट्स। देखो, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, फॉरेस्ट में ये सब होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम या जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है प्रोड्यूसर्स की। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स। द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। कंफर्म? ओके स्टूडेंट्स, आई वांट कि आप फिर से यहाँ पे फोकस करें, इस टॉपिक पे फिर से फोकस करें, राइट? यहाँ पे आपने देखा 1 food chain, 2nd food chain, 3rd food chain. Now please come here. Please look at here. Trees eaten by, say for example, goat. ठीक है, goat eaten by tiger. This is the first food chain. Plants or say for example some type of bushes eaten by rabbit. ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेरा ये मत पूछना है आपसे कि इस फूड चेन में और ये फूड चेन में, ये मान लो एक फॉक्स है, तो क्या फॉक्स रैबिट को खा जाएगा? क्या टाइगर रैबिट को खा जाएगा? आई होप आपका आंसर होगा यस। तो स्टूडेंट्स, इन द नेचर बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं एंड ऑल दीज फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। द रीजन बिकॉज वन ऑर्गेनिज्म कैन बी ईटन बाय सो मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। सपोज मैं आपसे पूछूं कि कैट को कौन कौन खाएगा, तो आप बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के नाम दे दोगे जो कैट को खा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ अ वन फूड चेन, वी शुड थिंक ऑफ वेरियस फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। And when so many food chains are interconnected, so there are branching lines, and this interconnected food chains are called food web. What are they called, students? They are called food web. So students, this is a diagram of food web where all the food chains are interconnected to each other. Fine. Students, see, we always get our energy from plants and animals. हम plants products और animal product को खा के we get energy. Now have you ever thought कि यार मैंने आज तक plant से बहुत सारा energy लिया है, चल कल मैं सारे energy को return कर देता हूँ, मुझे उधार नहीं चाहिए. I want to return all the energy back to plants. Is it possible? No. Suppose कभी plants के दिमाग में एक thought आया कि यार मैंने sunlight बहुत यूज किया है, आज मैं अपनी सारी एनर्जी जो आज तक मैंने सन से ली है मैं रिटर्न करता हूं. इज इट पॉसिबल? नो. व्हाई सो? बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन. एनर्जी का जो फ्लो होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल होता है. यूनिडायरेक्शनल समझते हो?
it always flows in one direction, from producers to herbivores, herbivores to carnivores, and so on. Right? Energy flow cannot be reversed. It cannot be reverted back. It cannot be given back. It always goes from one tropic level to another tropic level. And when the energy goes from one tropic level to another tropic level, this energy keeps on decreasing. जो एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूअसली डिमिनिश होता जाता है. डिमिनिश मीन्स कम होता जाता है. इज दैट क्लियर? फाइन. स्टूडेंट्स, अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं आपको ले चलूंगा. स्टूडेंट्स, जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स, you know, hats off to them. They prepare the food grains for us, right? And all the great educated people of today, अगर आप किसी से पूछोगे कितने लोग फार्मर बनना चाहते हैं, सो शायद ही कोई आपको हाँ बोलेगा. सो फार्मर्स, इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग अस. फूड ग्रेन्स हम तक पहुंचाते हैं फार्मर्स. सो माई क्वेश्चन इज, फार्मर्स अपने खेत की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं? दे यूज फर्टिलाइजर्स, दे यूज पेस्टिसाइड्स, दे यूज इंसेक्टिसाइड्स. करेक्ट स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, दे एंटर द फूड चेन. कैसे? मैं आपको बताता हूं. एंड दे आर हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे एंटर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, आप जानना चाहेंगे कैसे? I'll tell you. The fertilizers, the pesticides, the insecticides which farmers are using, right? So this pesticides and other chemicals जो वो यूज करते हैं अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डिजीजेस, फ्रॉम पेस्ट्स, तो ये केमिकल्स दे एंटर द सॉइल along with water. They enter the soil, and once they enter the soil or once they enter any water body, from the soil or from the water bodies they enter the plants or animals. जैसे अगर पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स सॉइल में चले गए तो हमें पता है द रूट्स विल एब्जॉर्ब वाटर, और वाटर के साथ साथ वो इन केमिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे. सो ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, दे हैव एंटर्ड द प्लांट्स along with water and minerals. अगर वाटर बॉडीज में होंगे सो दे विल एंटर एक्वेटिक प्लांट्स, और अगर सॉइल में होंगे सो दे विल एंटर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द रूट्स दे गो टू स्टेम, दे गो टू रूट्स, दे गो टू वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के हर पार्ट में these chemicals have reached, and let me tell you, these chemicals are not degradable. Not degradable मतलब हम उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते. They cannot be broken down further. Further, we cannot break down into simple substances. इसको बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल. और बिकॉज ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पहुंच चुके हैं, जब भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, दे एंटर अवर बॉडी, एंड दीज केमिकल्स दे गेट एक्यूमुलेटेड. क्या बोलते हैं हिंदी में? इकट्ठा हो जाना. सो दे गेट एक्यूमुलेटेड इन अवर बॉडी, एंड दिस एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इस फिनोमिनन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं. सो आपके घर में जो भी फूड ग्रेन्स आते हैं, व्हीट, राइस, व्हाटएवर, और जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, आप उनको बाहर से तो वॉश करते हैं, दैट इज ऑब्वियस, but still they are there inside, the chemicals are there inside, and they keep accumulating in your body, and this phenomenon is called biological magnification. So students, this biological magnification, let's have a look in the textbook that what they have written, right? So please focus here. Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain, right? सो पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये जो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट, दे एंटर द फूड चेन. दीज केमिकल्स आर आइदर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज. फ्रॉम द सॉइल, ये जो केमिकल्स हैं ये सॉइल में एडअप हो जाते हैं या वाटर बॉडीज में चले जाते हैं. तो सॉइल से इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स इन केमिकल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स.
and from the water bodies these are taken up by aquatic plants and animals. Yes, aquatic plants and animals. So this is one of the way in which the food chain, this is one of the ways in which they enter the food chain. As these chemicals are not degradable मतलब उनको हम decompose नहीं कर सकते, they get accumulated progressively at each trophic level. As human beings occupy the topmost level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies, मतलब human beings. This phenomenon is known as biological magnification. So यही reason है why our food grains such as wheat, rice, vegetable, fruits and even meat, they contain different amount of pesticides. And these pesticides cannot be removed by washing or any other means. Is it clear, students? So here we complete biological magnification. So students, till biological magnification, I complete the first video of this chapter 15, our environment. Please go through this entire chapter till biological magnification again and again through this video as well as textbook, and do ask me whatever doubts you have. One small topic is left out now, how our activities affect the environment. So that topic I will cover in the next video of this chapter. Till then, keep learning and keep enjoying your life. Bye bye.